Okay, so my goes to Kabir. Kabir, name the small chocolate जरा बेटा. Name the smallest cell of human body. Kabir, कोई और नहीं बोलेगा. Very good. Red blood cells. Red muscles. ऐसे नहीं. Please let him speak. He knows the answer. ऐसे नहीं. Corpuscles, right? Name the largest cell of universe. Kabir. Universe. Very, very, very good. Catch करो हीरो शाबाश. Very good. Name the largest cell of human body. Neuron. Neuron is also called as nerve cell. Raise your hand. Expand PPLO. अरे वाह, that's like a class. I'm feeling so good. Expand PPLO. Expand मतलब समझते हो? क्या होता है expand मतलब? Full form. बोलो, बोलो शाबाश. जियान. हाँ, नाम नभी याद नहीं हुआ. बोलो बोलो शाबाश. रियान. Very good. Very good. Excellent. PPLO का एक नाम और था रियान, वो और सुना दो बस. PPLO is known by one more name. Arav Kashyap, you know the answer? Catch. Arav Kashyap, you know the answer? PPLO का एक और नाम था आरव कश्यप. आपने सुनाया भी था लास्ट क्लास में. I still remember. Pleuropneumonia. That is the full form. I'm saying PPLO is known by one more name. Mycoplasma. And why is this famous, Yash? Why is mycoplasma famous? Why is mycoplasma important or why is mycoplasma famous? It is the living part. No. It is the smallest cell of universe. What's your good name? We are meeting for the first time, Prithvi? Yes, come here. Second bench पे आ जाओ पृथ्वी. बेटा थोड़ा सा अंदर जाओ second bench. कबीर adjust कर लो. You will come over. बहुत जगह है अभी. Oh yes. Now my question goes to Reet. Reet, raise your hand. Reet, who discovered cell when, how, कैसे? सारा story जल्दी से. Robert Hooke discovered cells. Sit down, please be comfortable. हाँ. With the cells kinds of work, Very he good. noticed a honeycomb-like structure, Very good. which he named cells, which is Latin. अच्छा आपने notes पढ़े थे जो मैंने दिए थे? Raise your hand. रॉबर्ट हुक ने अपना काम कौन सी बुक में पब्लिश किया था? Yes. Excellent. मैंने बताया नहीं था लास्ट क्लास. मैं हर बार कुछ ना कुछ थ्रेड छोड़ूंगी तो आपको घर जाके रिवाइज करना है. Right hand. So Micrographia was the book in which Robert Hooke published his work. Excellent. Excellent. All right. Yes. Who gave the term protoplasm? Who gave the term protoplasm? Who gave the term last one? Purkinje. Last one. Who gave the cell theory? Schrieden और Schwann की cell theory को extend किसने किया था बच्चा? Rudolf. Excellent. What does Rudolf Virchow say? Rudolf ने क्या कहा था? हाँ. अपनी लैंग्वेज में सुना था? हाँ. जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं. कैसे आते हैं? By सेल डिवीजन. Super. Very 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 well done. बहुत बढ़िया. That's like very 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 good. आज मुझे ऐसे लग रहा है कि literally निशा आप सबने रिवाइज किया and I feel so good about it. All right. चलिए let's start. आगे चले. All right. Kiana, have you revised your work? Kiana and Arav Kashyap, because you were there in the last class. Ishan और मृणाल का first class है. Kiana? Yes, ma'am. आप last class में थे मेरे पास? Out and write your name and today's date fast. Kiana, आप last class में थे मेरे पास? नहीं. Kashvi ने question. All right. Have you revised your work? Abhinav इधर आइए. Abhinav come here. इधर आइए सामने. अच्छा Kiana, first living cell किसने देखा था? Robert Hooke ने. No, 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 no. I'm sorry. Arav Kashyap. Sorry. Leeuwenhoek ने. जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था वो था Dead cell. Yes, and the living cell was by Antony van Leeuwenhoek. Excellent. Arav Kashyap. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था मिस्टर कश्यप? थैंक यू. Ma'am, nucleus. Yes. Robert Brown discovered nucleus. Perfect. चलिए. I'm so happy that you have revised your work. Everybody has revised your work, right? Fine. Jenny इधर आ जाओ. अनिशा स्टूल लगाओ. Perfect. Now let's time to move ahead. All right. Has Jenny revised her work? Jenny has revised her work? Yes. Perfect. Please have a seat. Depending upon the cell, I mean the number of cell in the body, organisms are of two type. Krishav नहीं पहुंचा है, बाकी सब आ गए हैं. Ayansh. Depending upon Krishav is out somewhere ना मीका? हाँ. Right, 1 week के लिए. Yes, I remember. Okay, fine. Let me speak now. Okay, Ishan Gupta, kindly focus. All right, Mrinal, kindly focus. बच्चे अब हम नया काम शुरू करेंगे, ठीक है? Yes, everybody, okay. Please the board. Kindly be alert, be attentive. ध्यान बोर्ड पे. All right, आपको जो नहीं आएगा, you can ask me 100 of times, but जब मैं पूछूंगी तो मुझे आंसर चाहिए. All right, it's a fair ask है ना? Yes, good. So depending upon the number of cells in the body, right? हाँ ना, cells दो तरह के होते हैं बेटा. सामने देखिए. Some are unicellular and some are multicellular.
like this is amoeba. Amoeba is unicellular. मतलब इसका मतलब ये है मृणाल बॉडी में एक ही सेल है, राइट हैंड. तो अच्छी बात है ना बुरी बात है? बहुत बुरी बात है. बुरी बात कैसे मैं बताती हूँ. अगर किसी कारण से इस सेल को इंजरी हो गई पृथ्वी, राइट है ना, ऑर्गेनिज्म विल डाई. राइट से सुनो, आप चलते हो फिरते हो दौड़ते हो भागते हो, आपके रोज कितने सेल्स टूटते हैं. फिर आप खाना खाते हो, आपके कितने सेल्स नए बन जाते हैं. हजारों सेल रोज नए बनते हैं खाना खाने पे, राइट है ना. एम आई राइट? और रीत एक बार चोट लगने पे हजारों सेल टूटते हैं, पर हम मरते नहीं ना. से ये सुनो, द रीजन बीइंग दैट बिकॉज वी हैव मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी. ऑलराइट, सो वी आर कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर. हम कौन है? मल्टी सेलुलर्स. और यूनिसेलुलर्स आर द वन, आई रिपीट, उद्धव, वेयर इज उद्धव? रेज योर हैंड प्लीज, रेज योर हैंड एट योर नेम्स बिकॉज मुझे भी शक्लें याद करनी है. तो in the unicellular the body has only one cell. All right कबीर, अगर बॉडी में सिंगल सेल है कबीर तो क्या बोलते हैं उसको? यूनिसेल्युलर. राइट कबीर? से ये सुनो. ऑल राइट फाइन. सो आई रिपीट, अभी unicellular have just one cell in their body. All right, से ये सुनो. Now let's see the examples. तो सबसे हम दोस्ती करते हैं one by one. Right, all of them are your friends. Right, we'll deal them one by one. All right, please see over the board. The first unicellular in our syllabus over the board is amoeba. क्या नाम है इसका? बोलो. अमीबा. आपको पता है ये बड़ी खास बात क्या है कि अमीबा की कोई शेप नहीं होती है. लिसन टू मी, दिस इज अमीबा. आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास अमीबा इज फाउंड इन द काशवी. आइए ना, काशवी कहाँ है? काशवी, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हो, खड़े हो वहां. प्लीज यू मूव टू दैट चेयर बच्चा. हाँ यार काशवी, आप उस पे आ जाओ, ब्लैक चेयर पे. ईशान, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, राइट? हाँ ना, से सुनो, अमीबा इज इन शेप. आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास अमीबा गंदे पानी में मिलता है. सम टाइम आपको जब एक्यूट स्टमक पेन हो, आप डॉक्टर के पास जाओ तो देयर कुड बी अमीबा ग्रोइंग ऑन इन योर स्टमक और द टमी. दे कॉजेस द अमीबिक डिसेंट्री नाम का फूड पॉइजनिंग. तो अमीबा कौन है? हु इज अमीबा? यूनिसेलुलर. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन ओवर द बोर्ड प्लीज. इसको पहचाने की मिशिका ने इसको कल किया था. मिशिका, इसका नाम क्या है? लिखा हुआ है. ओके सॉरी, लैग है जूम में. युग्लिना. राइट राइट, युग्लिना में ध्यान से देखो, पेपरी बोर्ड पे देखो. इन द युग्लिना द ये यूनिसेल, ये सारे माइक्रोस्कोपिक है. मैं जो आपको पिक्चर दिखा रही हूँ जितिका, ये माइक्रोस्कोप की पिक्चर दिखा रही हूँ. आपको नेकेड आई से ही दिखाई नहीं देंगे. राइट उद्धव? हाँ ना, से सो. कैन यू सी इट हैज अ न्यूक्लियस इन द सेंटर? ऑल राइट, हाँ ना, एंड इट इज ग्रीन इन कलर. और आपको एक बड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ईशान. दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्लैजेला, राइट, विच हेल्प इन द मूवमेंट. राइट अर्नब गुप्ता, बोर्ड पे देखो. ये इसको किसमें हेल्प करता है? बोलो. मूवमेंट में. इस हेयर का नाम क्या है? युग्लिना. Sorry, flagella, and the organism is called as euglena. All right. The third is your paramecium. Paramecium looks like this. It looks like a sleeper's foot, right, Hannah? There is a zoom में थोड़ा सा lag है, 2 मिनट में आ जाएगा. Hardly 10-20 seconds. Yes. So this is euglena. So this is paramecium, right? इसकी body पे can you see the small hairs? They are called as cilia. सीलिया और फ्लैजेला इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. लोकोमोशन क्या होता है पता है? एग्जैक्टली, मूवमेंट. ऑलराइट हाँ. डू यू हैव सीलिया इन योर बॉडी? यस यू हैव. वेयर यू हैव मिशिका सीलिया? आई टोल्ड यू यस्टरडे. वेयर डू हैव? वेयर इन द स्किन? hairs are not, these are not cilia. Where? Yes, your nostrils has cilia. Right हाँ. जो आपका nasal passage है, nose के अंदर, can you feel the small hairs? कभी तो फील किए होंगे. Right, they are your cilia and they play a very important role. You know what the cilia do, Ishan? जो आप एयर इनहेल करते हो ईशान, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. राइट हाँ ना, उन डस्ट पार्टिकल्स को यहाँ पर ट्रैप कर लेते हैं सीलिया. एम आई राइट हाँ ना? वो डस्ट पार्टिकल अगर अंदर जाएंगे तो लंग्स में इंजरी कॉज कर सकते हैं. और वो डस्ट नोजी बन के निकलता रहता है जो आपने इनहेल. राइट बच्चा? से सो आई नीड योर अटेंशन वंस मोर. प्लीज हेल्प मी. और नाउ कैन यू आइडेंटिफाई देम विद देयर शेप? क्या आप इनको शेप से जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हो? से एज नो पर्टिकुलर सीलिया और फ्लैजेला, वी कॉल इट एज अमीबा. मृणाल? यस मैम. ये कौन है बच्चा? अमीबा. आपको अमीबा दिखाई दे रहा है? मैम आपकी स्क्रीन पे मीशियम ही दिख रहा है अभी. हाँ, स्क्रीन फ्रीज है. निशा एक सेकंड रुकना. निशा जल्दी इसका चेंज करो, ये वाला कुछ गड़बड़ हुआ है. 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, गैप है. हाँ, दैट्स ओके. लेट्स सी. ऑलराइट, सो दिस इज अमीबा. कैन यू सी अमीबा? यस से मैम. perfect. Right, there is some lag in the zoom but that's okay, हो जाएगा.
ये कौन था जिसमें ऐसे था बॉडी विद द होल सीलिया ओवर द बॉडी? दिस इज पैरामीशियम। इसमें मैंने कहा था आपको 2 न्यूक्लियस होते हैं, आपको याद है लास्ट क्लास में? ईशान गुप्ता, दिस इज पैरामीशियम एंड द वन with one big hair flagella we call it as euglena. Euglena. And Ishan, for your information, whether it is amoeba, all right, whether it is paramecium and whether it is euglena, class 9th, are they plant? मेरा बच्चा, what's your name please? Yukti. Yukti, are they plants or they animals? किस कैटेगरी में रखोगे? ठीक है, यू आर वेरी राइट, मैं गलत क्वेश्चन पूछा जान के, पर एनीबडी नोज ये कौन है सारे के सारे? नो, प्रोटोजोआ। आवाज कहां से आई? प्रोटोजोआ। वेरी 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 गुड, दे आर ऑल प्रोटोजोआ। ना ये प्लांट्स है बच्चा, ना ये एनिमल्स है, ये प्रोटोजोआ है, या इसको बोलते हैं पृथ्वी प्रोटिस्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलोगे नहीं आज के बाद, राइट? अमीबा ना प्लांट है ना एनिमल है। यूजुअली प्लांट इज द वन, जो यूजुअली बोलती हूँ मैं, चमन जो अपना खाना खुद बनाता है, राइट? फोकस इन द क्लास। एनिमल इज द वन, राइट? कविश जो बना बनाया खाना खाता है, राइट? हाँ ना, राइट? ये जो होते हैं ना, अमीबा इंसेक्ट्स खाता है, पैरामीशियम माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट खाता है, यूग्लिना इंसेक्ट भी खाता है, अपना खाना खुद भी बनाता है। आपने यूग्लिना की स्लाइड देखी थी, ग्रीन कलर की थी, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट भी होता है, राइट? हाँ ना। सो आई मीन टू से वन थिंग, ना ये प्लांट्स है ना ये एनिमल्स है, ये माइक्रोस्कोपिक है, ऑलराइट? एंड दे आर द, आपकी डाइवर्सिटी इस बार ऐड हुई है जो पहले नहीं थी डाइवर्सिटी। इसमें 5 किंगडम होती है। एक होते हैं बैक्टीरियाज, फिनिश्ड। सेकंड होते हैं प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ में ये आते हैं आपके सिलेबस में बार बार, ये 3 आएंगे। कौन कौन से पढ़ो नाम फटाफट? अमीबा, पैरामीशियम। थर्ड किंगडम होती है फंजाई, फंजाई में आते हैं मशरूम, फंगस, ब्रेड मोल्ड, राइट? वो फंगस। फोर्थ होते हैं प्लांट और फिफ्थ होते हैं एनिमल्स। हम एनिमल्स हैं, ये प्रोटोजोआ है। डिड यू गेट दिस थिंग? ऑलराइट युक्ति, perfect. So if the body is made up of the single cell, we call it as, please help me out, unicellular. If the body is made up of many cells, we call it as, all right, as far as multicellulars are concerned, इनकी बॉडी में क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स, all right? For your information, सारे के सारे एनिमल्स मल्टीसेलुलर हैं ईशान, प्लांट्स मल्टीसेलुलर हैं, और फंजाई भी कैसे हैं बच्चा? बोलो, मल्टीसेलुलर। एम आई राइट? राइट ऑफ। टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्लीज लिखिएगा। ईशान आप मेरे साथ लिखोगे, राइट? Okay. एंड आरव कश्यप knows already how to do, right? कियाना को पता है लिखना है, मृणाल आप भी लिखेंगे, ठीक है? Okay. Type of organisms on the basis of number of cells. Yes, please. Type of, you have written it already, Mishika. Type of organisms on the basis of number of cells. Yukti, there are 2 type of organisms. Number 1, number 2. Yukti is excellent. Number 1, unicellular. पृथ्वी सिंह, यूनिसेलुलर की बॉडी में कितने सेल होते हैं? 1। यूनि क्या होता है? 1, ठीक है बेटू? Here body is made up of single cell, right? Ayana, can you name me some unicellulars? Amoeba, paramecium, excellent. And here are the, मैंने प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाया, पर मैंने ऐसा डायग्राम बनाया कि आप इनको आइडेंटिफाई कर सको, राइट बच्चा? गो फॉर इट, ड्रॉ इट, लिखो बच्चा, वेटिंग फॉर। यस, बहुत सारी ड्राइंग आएंगी चैप्टर में। पहले डेफिनेशन पूरी लिखो, बोर्ड से कॉपी करना है। हेयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। आपको अपनी क्लास कॉपी को ही एग्जाम के दौरान पढ़ना है। आपकी क्लास कॉपी में सारी एमिनेंट टेक्स्ट बुक्स, सारे पीवाईक्यूज, सब कुछ कवर होगा। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? तो अपनी कॉपी को वेल मेंटेन रखो, राइट? कॉपी को में कुछ भी मिस नहीं करना है, बोर्ड से आपको हर चीज कॉपी करनी है, ठीक है? काशवी, अमीबा, पैरामीशियम एंड थर्ड वन इज काशवी। आपका थर्ड फ्रेंड कौन है आज? भाविक, युगलीना। यू आर स्नेहल सिस्टर। इस बैच में मेरे पास बहुत सारे सिबलिंग्स हैं जो मेरे पास पढ़ के जा चुके हैं। रेज योर हैंड जो जिनके ब्रदर सिस्टर्स पढ़ के जा चुके। और भाई साहब, ओके माय गॉड, ओके, बट लेट मी नो वन बाय वन। दिस इज सोनाक्षी सिस्टर, ओके फाइन। पृथ्वी किसका ब्रदर है? अदिति, आगे कंप्लीट नाम बोलो। अदिति सिंह, अच्छा अदिति सिंह डीपीएस। ओह, तो ओके फाइन, अच्छा ठीक है। तो अच्छा, आपको लास्ट क्लास में आया था, पापा से मेरी बात हुई थी, ओके। सेक्टर 8 से 9 से आते हो ना आप? ओके नाइस। कबीर इज अलवीराज ब्रदर, आई नो। और कौन कौन है ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स? कबीर किसका ब्रदर है? ओ यू आर गौरीज ब्रदर, ओके, गौरी खट्टक। पीछे हृदांशुज ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? रुशेल इज हृदांशुज ब्रदर, ओके फाइन। प्लीज मुझे बता दो, मुझे पता होना चाहिए। हाँ जी, यू आर आर्चीज ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? अनिरुद्ध, ओके। Tesya, yeah, fine.
रीम, रिशित, वृंदा, दिस इज जानवीज ब्रदर, ओके, और हाँ भव्या's ब्रदर, यस, खुशी's ब्रदर, अक्षत, नहीं, मैं सबको जानती हूँ, अपने बच्चों को भूलती नहीं हूँ। अक्षत गुप्ता, स्कूल बताओ। गॉट इट, अच्छा आप अक्षत के ब्रदर हो, सॉरी, अच्छा ऋषिका's ब्रदर, ठीक है फाइन, आप तुम्हें, और हाँ दैट्स स्नेहा's brother, ओके माय गॉड, दिस इज द कोइंसिडेंस, दिस टाइम वी हैव मैक्सिमम वो बच्चे जो मेरे पास से 12th करके जा चुके हैं, एंड मृणाल इज आल्सो हृदय सिस्टर, परफेक्ट, चलिए शाबाश। अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, पैरामीशियम कितना गंदा बनाया हमने, ठीक से बनाओ, 2 न्यूक्लियस बनाओ, अमीबा ही ठीक बनाए बिकॉज उसकी शेप कुछ होती नहीं है, डायग्राम ठीक से बनाओ, ओके चले, all right, so unicellulars are the one whose body is made up of single cell, am I right? All right kiya na? But Yes, if the ma'am. body is made up of many cells, we call it as, please help me out, multi-cell, right? सारे एनिमल्स कैसे है बच्चा, मल्टी, आप खुद कैसे हो, हम किस में आते हैं, एनिमल्स, राइट हैंड, in fact plants are also multicellular and the kingdom fungi is also multicellular. fungi के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हो, fungi सुनते ही अभी जो माइंड में नाम आना चाहिए मशरूम आना चाहिए, मशरूम is a fungus, all right, yes please, right on, multicellular, here body is made up of many cells, right Kabir, examples include animals, plants and fungi. Yes please, so when the body is made up of many cells, चमन आपने लिख लिया, we call it as multicellular. चमन examples बोलिए please, animals, plants and fungi. And do you remember पृथ्वी सिंह, इन सब अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना का किंगडम कौन सा है, पृथ्वी, प्रोटोजोआ, राइट, परफेक्ट, प्रोटोजोआ इज नोन बाय वन मोर नेम एक्चुअली, प्रोटिस्टा, सॉरी, ओके, आज आपको एक नई चीज सिखाएंगे, आप ध्यान से मुझे सुनेंगे, परफेक्ट, इज दिस डन बच्चा, ऑल राइट, हरी कबीर, वेटिंग फॉर यू. When the body is made up of many cells, Abir, we call it as multicellulars. The examples include the kingdom animals. Animals include rat, cat, dog, monkey, जो भी आप देख रहे हो. Plants, again, plant kingdom भी बहुत बड़ी है, पता है काशवी? Plant kingdom भी बहुत बड़ी है. Plant include mango, orange, ये तो है ही है. Plant kingdom बहुत बड़ी है. Algae भी इसमें आते हैं, right? आना पढ़ोगे सब कुछ. Fungi includes, fungi में आप best example जो आपके लिए याद करने वाला है वो मशरूम है, जिसको आप याद रखना, right? पूरा नाम है इसका Agaricus campestris. You will learn it very soon. And the fungi is your फंजाई के एग्जांपल्स क्या बोले मैंने, किया ना, मशरूम है, राइट, और देखो ये पिक्चर, इसको आप जानते हो ये क्या है, सबसे ऊपर वाली पिक्चर देखो ऑन द अपर राइट साइड, ये क्या है, ब्रेड मोल्ड. जब कभी ब्रेड को बाहर रखते हो 2-4 दिन के लिए, कैन यू सी वो ब्लैक हो जाती है, राइट, हाँ, दिस इज अ ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड भी फंजाई होता है. इनफैक्ट मोल्ड, MOULD आप कभी भी पढ़ोगे ना, मोल्ड मतलब होता है रक्षण, फंजाई, मोल्ड क्या होता है, सारे के सारे फंगस, ऑलराइट, समझिए. फंगस आपकी बॉडी में स्किन इन्फेक्शंस करते हैं. कभी कभी आपको ऐसा होता है ना, यू फील द रेडनेस, यू फील कभी कभी फिंगर्स के बीच में आपको खुजली होती है, राइट, हाँ ना, ये फंगस करते हैं, ये फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो बेसिकली स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, ऑलराइट, से सुनो, परफेक्ट है, इज इट डन, गुड इनफ टू गो अहेड. All right, now listen to me, class 9th. Let's see it over the board. आज एक नई चीज सीखेंगे हम जिसका नाम है division of labor. ईशान गुप्ता, have you written this? Mr. Gupta, आप लिख चुके हो? Right. Yes, ma'am. मृणाल, have you written this? Yes, ma'am. अब आपको सुनना है मुझे. Division of labor मतलब होता है differentiation. All right, my question to you. क्या आपके घर में डिवीजन ऑफ लेबर है? यस और नो? क्या आपकी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है? काशवी, मेरी बॉडी में काम डिवाइडेड है. हार्ट का काम है सर्कुलेशन, राइट, हाँ ना, से यस और नो? ऑलराइट, एंड पिवरी किडनी हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, लंग्स हेल्प इन, फॉर टाइम लगेगा मुझे सीख जाऊं, रेस्पिरेशन, राइट, एलिमेंट्री कैनाल हेल्प इन न्यूट्रिशन. इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. कभी क्या कभी लंग बोलता है किडनी को कि आज के लिए आई एम ऑन स्लीप मोड, आज मुझे काम नहीं करना, आज तुम मेरा काम कर लो, मैं तुम्हारा काम कर लेता हूँ. इज इट पॉसिबल? अर्नब गुप्ता बोर्ड पे देखो, बाद में कॉपी करना. तो
जब हमारी बॉडी में जैसे काम जो डिवाइडेड है, राइट, हाँ ना, इसको बोलते हैं हम क्या, डिवीजन ऑफ लेबर, राइट बच्चा, हाँ ना। जैसे लंग्स करते हैं रेस्पिरेशन से, किडनीज करती है यश एक्सक्रीशन, हार्ट करता है सर्कुलेशन। ऐसा तो नहीं ना कि हार्ट बोले कि आज मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ, लंग्स तुम मेरा काम कर लो, इज इट पॉसिबल? नहीं, हो जाएगी रटा बाबा इतनी देर में तो, राइट है ना। तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, और टेक्निकली इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशिएशन। युक्ति, when the work is divided amongst the various body parts we call it as division of labor. डिवीजन ऑफ लेबर टेक्निकली किसमें होगी, यूनिसेलुलर में या मल्टीसेलुलर में? यूनिसेलुलर में एक ही सेल है, तो जब एक ही सेल है तो वो अपना सारा काम खुद करेगा। अगर घर में एक ही बंदा रहेगा तो अपना काम सारा खुद करेगा, से ये सुनो, हाँ है ना। हमें मम्मी पापा की इंपॉर्टेंस कब रियलाइज होती है रियली, सच्चाई में? अभी नहीं होगी, पता कब होगी? जब तुम जाओगे हॉस्टल, है ना, 12th के बाद, then you will feel कि मम्मा was so integral part of life, पापा was so integral part of life, है ना। अभी पता नहीं चलेगा, that's okay, I understand. Yes, absolutely. So the picture is that कि when you will do all your work, then you will came to realize कि मम्मा पापा कितना काम आपके लिए करते थे, है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। इनफैक्ट हमारे घर में भी डिवीजन ऑफ लेबर है। एक बहुत मतलब ब्लंट बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट अस इमेजिन लाइक दैट, से पापा अर्न मनी, दो नॉट करेक्ट 100% मैं बोल रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट हाँ ना पृथ्वी, ठीक है। मम्मा यूज टू मैनेज ऑल योर स्टफ्स, ऑल योर कोर्स, राइट हाँ ना। पापा अर्न मनी, है ना, वी यूज टू पुट फायर ऑन दैट मनी। नहीं ना, हम भी काम करते हैं। आपके लिए काम, सिर्फ एक काम दिया हुआ है पेरेंट्स ने, वो काम क्या है पता है? पढ़ना। और अगर आप वो भी अच्छे से नहीं कर रहे हो तो गलत बात है ना। तो सिर्फ एक काम है हमारे पास, वो काम कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, और कोई काम नहीं है ना। तो इसीलिए हमें पढ़ाई में, अपने काम में कमी नहीं रखनी चाहिए। ऑलराइट, चलो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइंटिफिक रीजंस। सो इन योर बॉडी जैसे डिवीजन ऑफ लेबर है, मल्टी सेलुलर्स में देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। माय क्वेश्चन गोज टू यू, नेम द वन सेल जिससे आप मल्टी सेलुलर बने हो। आपकी लाइफ पृथ्वी सिंगल सेल से शुरू हुई है। व्हाट इज दैट सिंगल सेल कॉल्ड? जाइगोट सेल, जाइगोट, राइट। आपकी लाइफ शुरू किससे हुई थी? जाइगोट से, एंड द जाइगोट डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली एंड फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, राइट हाँ। ऐसे बोलना कि यूनिसेलुलर्स में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, ये गलत है। देयर आर टू टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर टेक्निकली, इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर। यूनिसेलुलर्स में भी डिवीजन ऑफ लेबर है, इनके अंदर एक ही सेल है, पर आपको पता है सेल में अलग अलग ही ऑर्गेनलीज हैं जो अपना, जिनके जो अलग अलग काम करती है, राइट हाँ ना। से ये सुनो, am I right? जैसे फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स हेल्प इन, थोड़ा सा आपको पता है शायद, प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द जनरेशन ऑफ एटीपी और द एनर्जी, राइट हाँ ना। से ये सुनो, तो ऐसे बोलना कि लिसन, यूनिसेलुलर्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये पूरी तरह सही नहीं है। दो तरह की डिवीजन ऑफ लेबर होती है, सुनना। एक होती है इंटरसेलुलर निशा, और एक होती है इंट्रासेलुलर, राइट। सामने बैठा उसकी मम्मा क्या कह रही है। जो एक सेल में है वो है इंट्रासेलुलर, और जो अलग अलग सेल्स के बीच में है वो क्या है? इंटरसेलुलर। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ इंट्रा स्कूल कंपटीशन, तो डीपीएस की मान लीजिए अलग अलग क्लासेस के बीच में कंपटीशन हुआ, क्लास 1 विद द क्लास 2, क्लास 3, व्हाटएवर इट इज, ये है इंट्रा स्कूल, विद इन अ स्कूल। इफ आई से इंटर स्कूल, से डीपीएस वर्सेस एमवीएन से एमडीपीएस, ये इंटर है, वर्सेस एमआर, ये अलग अलग स्कूल्स हो गए ना। तो बिटवीन द सेल इज इंटरसेलुलर एंड विद इन द सेल इज इंट्रासेलुलर। अमीबा में यूनिसेलुलर्स में कौन सी डिवीजन ऑफ लेबर होगी? इंट्रा, विद इन द सेल। सुनो प्लीज, विद इन द सेल जो होगा ना, राइट रोशेल, जो काम होगा वो डिवाइडेड होगा, राइट आदरिक हाँ ना, विद इन द सेल। पर आपकी बॉडी में क्या है? इंटर भी है और इंट्रा भी है, विद इन द सेल भी है, राइट हाँ ना, विद इन द बॉडी भी है, राइट हाँ ना, और बिटवीन द सेल्स भी है, विद इन द सेल भी है और बिटवीन द सेल भी है, राइट हाँ ना। से सुनो, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है बोलो? ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे हार्ट इज अ ऑर्गन परफॉर्मिंग से रेस्पिरेशन, राइट। किडनी इज अ ऑर्गन परफॉर्मिंग से excretion, like that. Say yes or no, right? So when the work is divided amongst the various organ, we call it as, please help me out, division of labor. Division of labor सही मायने में किसमें देखने को मिलती है रिद्धि? Right? I repeat, किसमें? मल्टी सेलुलर, राइट हाँ ना। यूनिसेलुलर्स में भी होती है, पर उसमें विद इन द सेल होती है, जिसको बोलते हैं क्या? इंट्रासेलुलर, एंड दैट अकर, अब सीधे बैठो, बिटवीन द वेरियस सेल ऑर्गेनलीज, राइट हाँ ना। जैसे राइबोसोम इज एन ऑर्गेनल व्हिच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन एनर्जी, लाइक दैट। से यस और नो हाँ ना। डिड यू गेट दिस थिंग? तो वैसे सही मायने में डिवीजन ऑफ लेबर किसमें है? जल्दी से बोलो। मल्टी में। पर क्या यूनी में है? आंसर इज है,
पर वो कौन सी वाली है? विद इन अ सेल। और वो काम कौन करता है? अलग अलग सेल ऑर्गेनलीज। कौन करता है बोलो? सेल। और आपकी बॉडी में ऑर्गेनलीज भी करते हैं, ऑर्गन भी करते हैं, राइट है? मेरी बॉडी में सेल के अंदर भी है पृथ्वी, राइट, इंट्रासेलुलर भी है पृथ्वी, और मेरी बॉडी में वैसे भी काम ऑर्गन्स के बीच में भी डिवाइडेड है, राइट? हाँ ना। हार्ट ये करेगा, लंग, इस अमीबा के पास देयर इज नो हार्ट, देयर इज नो लंग, देयर इज नो किडनी, देयर इज जस्ट वन सेल। सही है सुनो? ऑलराइट रीत, परफेक्ट, राइट डाउन। नेक्स्ट आर्टिकल लिखिएगा, आफ्टर यूनि एंड मल्टी, राइट डाउन, डिवीजन ऑफ लेबर और डिफरेंशिएशन। हियर work is divided amongst, please help me out, different body organs लिखते हैं पहले, right? Hence ईशान, इसका मतलब क्या है? that different body parts perform, बोलो ईशान, different functions. complete my line, right? अलग अलग फंक्शंस आपकी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स करते हैं। जैसे हार्ट क्या करता है ईशान? हार्ट परफॉर्म सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एक्सीलेंट। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, राइट? काम का डिवीजन, देयर इज अ डिवीजन ऑफ वर्क, राइट? काशवी, काशवी किडनी परफॉर्म excretion, Jania lungs perform respiration. excellent. All right Rushil, और इस तरह की डिवीजन ऑफ लेबर किस में कॉमन होती है? यूनि में, मल्टी में? तो क्या यूनि में बिल्कुल नहीं होती? पर यूनि में कौन सी वाली होती है? इंट्रासेलुलर। इट इज सीन इन मल्टीसेलुलर। अर्नव, ये बात समझ में आई आपको? देयर आर 2 notes waiting for you, थोड़ा जल्दी पेन चलाएंगे। नोट नंबर 1, यश, लाइफ ओरिजिनेट, all the multicellulars का लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। एम्ब्रियो तो मल्टीसेलुलर होता है बच्चा, राइट? आपकी लाइफ किससे ओरिजिनेट हुई है? जाइगोट से। When sperm and egg combine, zygote is formed. Zygote undergoes repeated division in the 9 month in the mother's body and form the complete organism. Multicellulars came, बेटा कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, into existence from a single cell. युक्ति, we call that single cell as मेरा बच्चा zygote, right युक्ति? Superb. Be active in the class, right? You will enjoy the class. ठीक है? कंपल्शन की तरह मत पढ़ो। Is division of labor seen in unicellulars? Yes. Division of labor is also seen in unicellulars, where each cell has क्या? Certain, please help me out. No, I can say specific components. क्या नाम था उनका? Ordinary. Yes, excellent. Called cell organelles, which perform special function. All right पृथ्वी, कौन सी ऑर्गेनली आपको प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है? राइबोसोम, राइट? आपकी बॉडी के प्रोटीन्स कौन बनाता है? राइबोसोम। हाँ बेटा जी, बिल्कुल मेरे बच्चे। रेड वाला पहले पूरा करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। ईशान, यहां तक क्लियर है बेटा? आरव, ये क्लियर है बेटू? आरव, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. रेड वाला हो गया बेटा? Yes, ma'am. कभी नहीं छोड़ना, नहीं है, कभी पूरा करो। हाँ करो करो, आराम से करो, टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम रहेगा, स्पीड मैचअप हो जाएगा। वेट,
नोट से लिखते हैं, ठीक है बच्चा? शुभम, ये हो गया? कविश नोट से लिखते हैं, आई विल सेंड यू द नोट्स, राइट? जो रह गया भेज दूंगी। राइट, नेक्स्ट। राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। एंड कियाना, हाउ डज माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प? कियाना, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन In making ATPs. राइट, इन एनर्जी जनरेशन, यानी कि एटीपी बनाना। एनर्जी मतलब एटीपी होता है बेटा, राइट? मिशिका, क्लियर है बेटू? निष्ठा, गुड इनफ टू गो अहेड? निष्ठा जी, ओके फाइन, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। क्या लिखा है? सेल के बाद कॉल्ड सेल। ऑर्गेनलीज, जो कंपार्टमेंट्स है, कंपोनेंट्स है, उनको बोलते हैं ऑर्गेनलीज। उद्धव, क्लियर है? परफेक्ट। Ayansh, is this clear? Shall we go ahead then? भाविक, भाविक, क्या आपकी बॉडी के सारे सेल्स एक जैसे होते हैं? नहीं। मैम प्रोटीन के बाद क्या लिखा है? Synthesis means formation. Please ask if you have any doubt in any word, right, bacha? Please ask me out if you have any doubt. And mitochondria help in energy generation. गीताली, क्लियर है? गीताली जी, वेरी गुड। ऑल राइट, परफेक्ट। आज मैम ने आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बहुत अच्छे रूट्स देंगे, एक बार आप उसको घर जाके रीड आउट जरूर करना, राइट? यू विल फाइंड समथिंग एक्स्ट्रा फॉर श्योर। ऑल राइट, अर्नव, इज दिस कॉपी? Excuse me, ma'am. पापा विल कम टू पिक यू Excuse अप। me. पापा लेने आएंगे आपको, फोन आया था मम्मा का। अर्नव, हाँ बेटा बोलो। Ma'am, which book are you referring right now? Like, which I should मैं read? आपको जो मटेरियल दूंगी ना बेटा, उसमें सारी बुक्स कवर होगी, आप मेरे लिए कोई बुक मत लेना। मैं आपको बहुत मटेरियल दूंगी। आपको जो स्कूल्स बुक Okay. दिलाती है वो बुक ले लीजिए, क्योंकि बुक्स में मेरे नोट्स में सारी बुक्स ऑटोमेटिकली कवर्ड है। Okay, ma'am. सिलेबस अभी नया सिलेबस, नया बुक्स आया भी नहीं है, राइट? तो अभी जल्दी मत करिए, मैं नया सिलेबस ही करा रही हूँ सारा, राइट? बट आप अभी वेट फॉर द लाइक न्यू बुक्स इन द मार्केट। ऑलराइट रियांश, Okay, ma'am. अनिरुद्ध सिंह, अनिरुद्ध चले आगे। ऑलराइट, यस प्लीज बताओ। देखो, डिवीजन ऑफ लेबर टर्म है मल्टी सेलुलर की, राइट? हाँ, आप मल्टी सेलुलर हो, आपकी बॉडी में टेक्निकली डिवीजन ऑफ लेबर है, हाँ है ना? हार्ट कर रहा है अलग काम, लंग कर रहा है अलग काम, किडनी कर रहा है अलग काम, और वो जिंदगी भर वही काम करते हैं, राइट बच्चा? हम ये बोल रहे हैं कि यूनिसेलुलर्स में भी थोड़ी डिवीजन ऑफ लेबर होती है। जैसे अमीबा है, सिंगल सेल है, उसमें ऑर्गन्स नहीं है, बट सेल ऑर्गेनलीज के अंदर काम डिवाइडेड है। सेल में अलग अलग पार्ट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ईआर, वो अलग अलग काम करते हैं सारे। उन्हीं काम को आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर के, राइट? तो उसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो विद इन द सेल है, राइट? मतलब एक सेल है और वो सेल काम सारा करेगा, पर सेल के अलग अलग कंपार्टमेंट्स काम करते हैं, जिनको हम ऑर्गेनलीज कहते हैं बच्चे, ठीक है? हाँ, इंट्रासेलुलर, राइट? शैल वी गो अहेड, से यस और नो? ऑल राइट, नाउ यस प्लीज। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन एनर्जी जनरेशन, ये ऑर्गेनली का नाम है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनलीज है, आप धीरे धीरे इनको सीख जाओगे, सेल के पार्ट्स हैं। हैव यू हर्ड अबाउट इट इन द ग्रेड 8? थोड़ा बहुत पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? थोड़ा बहुत पढ़ा है, सुना है, हाँ, पढ़ा नहीं है, ठीक है, फाइन, गॉट इट। चलिए, ओके, नाउ लिसन टू मी। यस, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, करेक्ट, ओवर द बोर्ड। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। आपको पता है, जिसका पूरा नहीं हुआ पूरा कीजिए, जिसका पूरा हो गया मुझे सुनिए। ऑलराइट, आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल होती है मृणाल, मृणाल, उसको कहते हैं हम सेल वॉल इन प्लांट्स एंड सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल्स। दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। आयांश, मैंने क्या बोला, दोबारा देखिए। Cell wall in plants and cell membrane in animals. एब्सोल्युटली, ये देखिएगा, सबका ध्यान सामने। कियारा, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, ma'am. तो इफ यू सी ओवर द बोर्ड ना, कियारा, कैन यू सी द आउटर मोस्ट कवरिंग? ये प्लांट सेल है, ये है सेल वॉल,
In the plant cell, the outermost covering is called as cell wall. चमनदीप, plant cell का outermost covering क्या है चमन? जल्दी से बोलिए. Cell wall. Right, Hannah. On the contrary, there should be no whispering in the class. आपको जो पूछना है मेरे से पूछो, आपस में बात नहीं करना है. And if you see the animal cell, right, Hannah, animal cell का outermost covering होता है cell membrane. और plant cell का क्या होता है? Cell wall. बहुत फेमस क्वेश्चन है. Name the outermost covering of plant cell. और wall. और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, पर आपके पास एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती. एनिमल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? सेल मेम्ब्रेन. सो विच कवरिंग सेपरेट द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट इन द केस ऑफ द प्लांट एंड इन एनिमल? आद्रिक, आपके पास सेल वॉल है? नहीं है. हम प्लांट नहीं है, एनिमल से हमारे पास सेल वॉल नहीं है. सही है सनो? हाँ ना. अगला चीज, सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल फुली परमिएबल होती है, मतलब हर चीज को अंदर बाहर आने जाने देती है. पर अगर ऐसा होगा तो इमेजिन, हम तो एक बार पानी पीते ही बॉडी स्वेल, एक बार वॉमिट करते ही बॉडी श्रिंक, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि सेल वॉल के अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, जो फुली परमिएबल नहीं होती. सेल वॉल कैसी होती है? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो. सेल वॉल कैसी होती है? फुली परमिएबल. राइट. सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल की, रिजिड है, रिजिड फॉर टफ. अर्नब गुप्ता, प्लांट्स में सेल वॉल बनती है सेल्यूलोज नाम के कंपाउंड की. प्लीज लिसन टू मी वंस मोर. मैंने क्या बोला? इन द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लीज हेल्प मी आउट, सेल्यूलोज. राइट. प्लांट में सेल वॉल किस केमिकल की बनती है? सेल्यूलोज. राइट. हाँ ना, से सुनो. इन द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. आप जब कभी डाइट पे होते हो, राइट, हाँ ना, तो क्या खाते हो? सैलेड्स खाते हो. जब आप सैलेड्स खाते हो तो आप कच्चे प्लांट्स खाते हो, तो टेक्निकली आप सेल्यूलोज खाते हो, बिकॉज प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. आपको पता है सैलेड्स आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, राइट? पता है आपकी बॉडी में, क्योंकि जब आप अब मान लो ये सपोज ये प्लांट, इमेजिन गाजर है, कैरेट है, मैंने ये रॉ खाया, कच्चा खाया ईशान, तो मैंने इसकी सेल वॉल खाई, एंड ईशान सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. तो आरव मैंने टेक्निकली सेल्यूलोज खाया, राइट? आरव कश्यप से ये सनो हाँ ना, राइट? आरव, अब क्या ना, जब मैंने इसको कुक किया, गाजर का सब्जी बनाया, तो ये सेल वॉल टूट जाती है, सेल वॉल ऑटोमेटिकली, राइट? हाँ ना, फाइन. तो आपने जो वेजिटेबल खाया वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, पर जो आप सैलेड्स खाते हो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते. तो व्हाई शुड वी ईट सैलेड बिफोर द फूड? आप मेन फूड से पहले सैलेड्स खाते हो या सिर्फ सैलेड्स खाते हो आजकल, राइट? क्यों? क्योंकि जब आप सैलेड खाते हो ना, तो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है चैन्या, बट आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो बॉडी से एज इट इज इजेस्ट आउट हो जाएगा, मतलब एज इट इज वाया पॉटी निकल जाएगा. तो क्यों खाया? उसको खाने से, जब मैंने उसके बाद चपाती खाया ना, मेरी बॉडी में जगह जगह पर जूसेस बने हुए हैं, बिकॉज वो जूसेस उस सैलेड को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे. तो जब मैंने उसके बाद जो रोटी खाई सैलेड खाने के बाद, वो रोटी बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है. सेकेंड थिंग, सैलेड खाने से भूख कम लगती है, बिकॉज आपको उसको बहुत चबाना पड़ता है, इट इज रफिज, राइट? है ना. सो दैट सेटिस्फाई योर एपेटाइट, आपका हंगर कम हो जाता है, राइट? तो प्लांट सेल वॉल किसकी बनती है? सेल्यूलोज की. अगर आप कच्ची सब्जियां खाते हो, आप सैलेड्स खाते हो, तो आप क्या खाते हो? सेल्यूलोज. पर जब आप उसको कुक करते हो ना, राइट, है ना, तब वो सेल्यूलोज खत्म हो जाता है, मर जाता है, राइट? है ना. से सुनो. तो इन द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फास्ट cellulose. In the fungi, cell wall is made up of chitin. This is chitin. ये प्यारा सा एनिमल है, सबका फेवरेट. यस, कॉकरोच की जो आउटर मोस्ट स्किन देखिए, ये चिटिन होती है. किसकी है ये कौन सा केमिकल है? चिटिन. चिटिन इस केमिकल से बनती है फंजाई की सेल वॉल. फंगस बोलते हैं किसको? मशरूम को, या ब्रेड मोल्ड को भी हमने बात किया था. तो आई रिपीट, in the fungi, cell wall is made up of chitin. I repeat once more, please help me out. Cell wall is outermost covering in the plant cell. Say yes or no, Hannah. In the plants, raise your hand. Cell wall is made up of cellulose. Please raise your hand. Bolo nahi answer. Mishika, in the fungi, cell wall is made up of. Mishika, in animal, cell wall is made up of cell membrane. Can you repeat? My question is, in animal, cell wall is made up of. In animal, cell wall is made up of. Absent है. कोई बात नहीं, खुशी की. मैंने क्या बोला? प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनती है?
सेल्यूलोज की। फंजाई में सेल वॉल की बनती है चिटिन की, और आपकी बॉडी में जितनी वॉल नहीं है। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आप बोलोगे मैम सेल वॉल इज एब्सेंट, राइट हैंड से ये सुनो। ऑल राइट कबीर, इज दिस क्लियर टू यू मेरा बच्चा? प्लीज राइट डाउन सेल वॉल। It is the outermost rigid. युक्ति, it is fully permeable मेरा बच्चा। युक्ति मैडम, cell wall is fully permeable, yes or no? Membrane present outside the cell wall, किसके बाहर है? नहीं, outside the cell membrane. I repeat once more, in plant cell wall is made up of, पक्का से लॉक कर दे आंसर को। ऑल राइट, यू नीड वाटर बच्चा, लेने पानी चाहिए। इन प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। बेटा अंदर वाटर टैंक भी लगा हुआ है और पानी साफ होता है, जिसको पीना हो ले लिया करो। इन फंजाई, ईशान ईशान, इन फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, In fungi, cell wall is made up of cellulose. नो चिटिन। प्लांट से सेल्यूलोज बेटा। चिटिन इज द सेम केमिकल जो कॉकरोच की आउटर स्किन पे होता है, ठीक है? ऑलराइट, कियाना, इन एनिमल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, Excuse me, ma'am. cellulose. कियाना सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स। आपके पास सेल वॉल नहीं है। हाँ बेटा बोलिए। Excuse me. Ma'am, what is written after membrane in the second line? Ma'am, what? I couldn't fully hear you. permeable, fully permeable membrane present outside the cell membrane. Okay, ma'am. Thank Can you guess why you don't have cell membrane, cell wall? Cell wall 100% permeable. नहीं, वो चलो छोड़ो उसके। why don't we need the cell wall? देखो क्या होता है, अब आंधी आएगी, तूफान आएगी, नेचुरल कैलामिटीज आएगा, राइट? हाँ, डू यू एग्री कि प्लांट को उसको वहीं पे खड़े होकर झेलना है? कैन प्लांट मूव? यू कैन मूव, राइट? हाँ ना। तो सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल देता है मजबूती और स्ट्रेंथ, राइट? हाँ ना चमन से सुनो। पर आपको उस इतनी मजबूती की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेनेवर देयर वुड बी एनी नेचुरल कैलामिटी आया ना, यू आर गोइंग टू लोकोमोट, राइट? हाँ, आप मूव कर सकते हो, पर क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते, फंजाई भी स्लो मूव करते हैं, राइट? हाँ ना, इसलिए इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। दैट्स व्हाई दे हैव सेल वॉल। आपको सेल वॉल की जरूरत काशवी नहीं है, राइट? एम आई राइट शाम्वी? गीताली? ऑल राइट रीत? परफेक्ट। नविका है, क्लियर है बच्चा? नविका रही है अभी, ये क्लियर है? यश चौधरी, तो सेल वॉल इज द आउटरमोस्ट कवरिंग इन डैश plant cell, right? And Yukti, in the animal cell, the outermost covering is excellent. Cell wall in the plant, Yukti, is made up of cellulose. In the fungi, it is made up of chitin. In the animal, it is made up of absent, right? कियाना, animals में आप में cell wall नहीं है, right? कियाना? Right, ma'am. Cell Oh. membrane है. Exactly. Cell membrane सबके पास है, right? Next, function of cell wall. Plant cells also need cell membrane. सेल वॉल तो फुली परमेबल है, सबको अंदर भेज देगी, सेल मर जाएगा। तो हु विल स्टॉप? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे काम करती है, भी आप पढ़ोगे। सेल, अगला आर्टिकल सेल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्या क्या फंक्शन सर्व करता है? नंबर 1, प्लीज लिसन कबीर, सेल वॉल प्लांट सेल की शेप को मेंटेन रखता है, यानी कि शेप ऑफ सेल मेंटेन रखता है। आपने अगर लोअर क्लासेस में सेल के डायग्राम करे तो आपने प्लांट हमेशा ऐसे बनाया, एनिमल गोल गोल कैसे ही बनाया। एनिमल सेल की शेप होती नहीं है पर्टिकुलर, बिकॉज एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है। वेरी वेरी गुड। हर एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है। अगर कोई भी चोट लगेगी पृथ्वी, तो वो चोट पृथ्वी पहले किसको लगेगी? सेल वॉल को। तो कौन सेल को इंजरी से बचाता है, चोट से बचाता है? सेल वॉल। एम आई राइट? हाँ ना। हमारे में कौन बचाता है? सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज वी डोंट हैव सेल वॉल। राइट डाउन फंक्शन ऑफ सेल वॉल नंबर 1, it maintains shape of cell. ईशान ये क्लियर है बेटा? कियाना? कियाना, it prevent the cell from complete my line. आप रिपीट कर सकते हो? हाँ, ये सेल को किससे बचाती है? बोलो, किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से, ताकि अगर कोई चोट होती है, राइट? हाँ ना, तो वो चोट किसको लगे?
किसको लगे? बोलो, सेल वॉल को, अंदर सेल तक कोई इंजरी ना पहुंचे, राइट बेटा? कौन सेल की शेप मेंटेन करता है? सेल वॉल। कौन सेल को इंजरी से बचाता है? किया ना? सेल वॉल सेल सेल वॉल अब खुद से शेप देता है, वो जिस प्लांट सेल में फिक्स्ड होती है, राइट? प्लांट सेल इज यूजुअली पेंटागन टाइप इन द शेप, राइट? तो शेप ऑफ सेल को कौन मेंटेन करता है? प्लीज हेल्प मी आउट वंस मोर। और मृणाल, इंजरी से सेल को कौन बचाता है मृणाल? Cell सेल wall. वॉल, राइट? अब तीसरी प्रॉब्लम सुनिएगा ध्यान से, ओवर द बोर्ड। थर्ड प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कविश, आयाना, हैव यू एवर सीन कि जब मम्मा, सपोज इमेजिन छोले राजमा बनाती है, तो मम्मा क्या करती है? एक दिन पहले भिगोती है पानी में, राइट? हाँ ना, साइंस घर से ही शुरू होती है बेटा। और वो भिगोने से वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे स्वेल एंड देन दे आर इजी टू कुक और इजी टू कुक, राइट? हाँ ना, सुनना, जब प्लांट सेल को आप पानी में रखते हो, राजमा प्लांट सेल ही तो है, राइट? हाँ ना, से सुनो, पानी का मतलब क्या होता है? हाइपोटोनिक मीडियम। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, प्लीज सुनो, ये मुश्किल है, अभी तक सबसे मुश्किल चीज है, मुश्किल नहीं है, बस इंटरेस्टिंग है। आई रिपीट, व्हेन अ प्लांट सेल इज केप्ट इन किस मीडियम? हाइपोटोनिक। व्हाट हैपेंड इज दैट, रिद्धि, उसमें पानी अंदर आता है। आपने देखा है राजमा फूल जाते हैं, छोले फूल जाते हैं, राइट? हाँ ना, पानी से। तो जब ये स्वेल करेंगे तो वाटर अंदर आएगा। वाटर जब अंदर आएगा तो डू यू एग्री कि वाटर विल एक्सर्ट द प्रेशर ऑन सेल वॉल, और सेल वॉल बस्ट हो सकती है। पर सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लगाती है, ताकि ताकि सेल बस्ट ना हो। यश, अगर सेल वॉल नहीं होगी, और इमेजिन आपने राजमा को, छोले को पानी में भिगोया, वो सारे फट जाएंगे, टूट जाएंगे। एक मिनट रुको। तो व्हाट हैपेंड इज दैट व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक मीडियम, वन बाय वन सुनो। हाइपो मींस जब पानी जिसमें अंदर आता है, तो जैसे ही पानी अंदर आता है जीतिका, राइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सेल में बस्ट, बट थैंक्स टू सेल वॉल उसको बस्ट होने नहीं देती। क्यों? जैसे ही पानी अंदर आएगा, पानी दीवारों पे प्रेशर लगाएगा, दीवारें यानी कि सेल वॉल उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लगाएगी, राइट? है ना? एंड बिकॉज ऑफ दैट इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर, जो मतलब ये समझो, ये सेल है, जब सेल के अंदर पानी आया, तो पानी ने क्या करा? पानी ने, इस ब्लू वाटर ने सेल की दीवारों के ऊपर प्रेशर लगाया, राइट? है ना? अगर सेल वॉल नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन इतना प्रेशर नहीं लगती, मेम्ब्रेन तो फट जाती है। तो इन द कॉन्ट्रेरी क्या होगा? सेल वॉल इसके ऊपर क्या लगाएगी? बोलो, इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर, एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, राइट? एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और क्या होगा? ये बस्ट नहीं होगा। तो कौन है जो सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बस्ट होने से बचाता है? Cell wall. इक्वल एंड अपोजिट हाँ, प्रेशर। हाँ, हाँ। तो फिर वो स्वेल क्यों हो जाती है? स्वेल इसलिए हुआ बिकॉज वाटर तो अंदर गया है ना, पानी तो अंदर गया है, पर इक्वल अपोजिट प्रेशर बच्चा उसको बस्ट होने नहीं देता। उधर फर्क है, फूलेगा राजमा पर वो राजमा फटेगा नहीं, बस्ट नहीं होगा, राइट? यस, अब बोलो। आई नो दैट, राइट डाउन। इट प्रिवेंट सेल, ये थर्ड क्वेश्चन पक्का आएगा सबके स्कूल में। हाउ सेल वॉल प्रिवेंट द बस्टिंग ऑफ सेल? इट प्रिवेंट द बस्टिंग ऑफ सेल कर लेते हैं। इन कौन से मीडियम में होती है बस्टिंग? हाइपो और हाइपर? हाइपो। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिख रही हूं कैसे। बिकॉज आरव कश्यप, व्हेन अ सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक मीडियम, आरव जी क्या होगा? पानी अंदर आएगा, यस मैम। और पानी क्या लगाएगा? एक प्रेशर लगाएगा वॉल पे। एग्जैक्टली। तो सेल वॉल क्या करेगी? उल्टा प्रेशर लगाएगी। इक्वल एंड अपोजिट। वेरी 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 गुड। और मृणाल, और बिकॉज थैंक्स टू सेल वॉल वो इतना प्रेशर लगा देती है कि मेरा सेल जो है जनिया, वो बस्ट आउट नहीं होता। नहीं हो पाता. In return, cell wall exert equal and opposite pressure. आज का वर्कशीट भेजो भाई फटाफट। And thus cell is prevented from being burst.
नो yawning in the class. इतनी जोर से yawning. निशा share the worksheet. वर्कशीट पहले ही भेज दिया करो शुरू में. तो सेल को ये बस्ट होने से बचाता है कौन से मीडियम में? प्लीज हेल्प मी आउट. Hypo. We are going to discuss this hypo and hyper thing in very much detail in the next class, right? In after 2 classes. वापिस बोलो. प्योर वाटर आता है सिर्फ, जिससे जहां पर प्योर वाटर हाइपो होता है. बाकी हाइपर एक होता है, हाइपो एक होता है, हाइपर एक होता है, आइसो. राइट. दिस इज हाइपो में सेल बस्ट करता है बच्चे. सेलाइन वाटर हाइपर होता है, श्रिंक करता है उसमें. ऑलराइट. ऑनलाइन मेरे पास मृणाल है और ईशान है and कियाना and one more child is there online. आरव कश्यप. मैंने आपको वर्कशीट शेयर कर दिया आज की. इसको रीड आउट करना. कुछ चीजें आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगी जो बहुत अच्छी हैं और आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी. ऑलराइट. Okay. So class 9th, revise your work. Now we are going to meet on Friday, right? Friday same time.